بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق حجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه سكتا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين بحق محمد وآل الطاهرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا ایک چیز مجھے پوچھنی ہے، آپ یہ جو ہم لوگ گرامر کی کلاسز کرتے ہیں تو آپ کو فائدہ ہوتا ہے اس سے؟ بہت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. وعلیکم السلام. ہاں بہت زیادہ. چلے خدا کا لاکھ شکر، بس اللہ کرے کہ جو ہم کر رہے ہیں نا یہ اللہ کرے ہماری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے کام آ جائے. صرف دنیا نہیں بلکہ دنیا اور دین دنیا دونوں کے لیے کام آ جائے اللہ کرے. تو مجھے پتہ ہے ماہ شعبان میں بہت زیادہ لوگ نہیں ہوتے، چھٹی بھی ہوتی ہے، تو بہتر ہے ہم ماہ شعبان میں چھٹی کرتے ہیں کیونکہ روز چھٹی ہوگی، روز مجلس ہوگی تو نہیں، ہم کوئی بھی کمفرٹیبل نہیں ہوگا نا. تو بس میں ویڈیوز بھیج دوں گی، اگر کسی کو دیکھنی ہے تو وہ دیکھ لیں، اور پھر انشاءاللہ اس کو ہم ماہ رمضان کے بعد پھر شروع سے شروع کریں گے. ویڈیوز اس لیے ہے تاکہ ان کو آگے سمجھنے میں مشکل نہ ہو. چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. پہلا سوال جو ہم نے بھیجا تھا وہ کون سا تھا؟ لازم اور متعدی کیا ہے، اس کی تعریف کہتا ہے. پہلے ہی سوال تھا لازم اور متعدی. کل ہم نے آپ نے بہت اچھا سمجھایا تو پھر بھی تو نہیں وہ اچھا ہے نا کہ ہمیں اچھے سے سمجھ میں آ جائے کہ بعد میں ہمیں پھر مشکل نہ ہو. چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلا سوال ہے لازم اور متعدی کیا ہے، اور دوسرا سوال تھا لازم کو بنانے کا طریقہ. کسی بھی ورڈ کو صرف کر رہا ہے باب افعال، فعل ماضی مضارع، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کو. چلے پھر ہم آتے ہیں، چوتھا سوال تھا ہمارا فعل امر باب تفعیل کا بنانا ہے، اس کے بنانے کا طریقہ بتانا ہے نا. اور یہ جملے کس باب کس میننگ میں آتے ہیں؟ احسد طوف زید. صحیح. ترجمہ اینالائز کرنا ہے، یہ جو ہم نے بھیجا ہے نا. کلن 5 سوال تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم جلدی جلدی سے کر لیں گے اور پھر ہمارا جلدی ختم ہو جائے گا. سب سے پہلے پھر لازم اور متعدی. آپ میرا ساتھ دیں گے نا، آپ مجھے بتا دیجیے اور میں کرتی جاتی ہوں. لازم اور متعدی ہمیں پتہ ہے کہ فعل کی قسمیں ہوتی ہیں. فعل ہم فعل کو یوں لکھتے ہیں، فعل کی قسمیں ہوتی ہیں. فعل ہوتا ہے لازم، متعدی. یہ ساتھ میں لکھ دیا. فعل لازم ہوتا ہے، فعل متعدی ہوتا ہے. پھر فعل کا الگ سے ہم کریں گے. فعل معلوم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے. فعل مجہول ہوتا ہے. پھر ہم آتے ہیں فعل. فعل سالم ہوتا ہے، فعل محموز ہوتا ہے. فعل محموز ہوتا ہے. فعل معطل ہوتا ہے. فعل مضاعف ہوتا ہے اور فعل صحیح ہوتا ہے. صحیح. ہاں اچھا اور کچھ آتا ہے فعل میں؟ ہاں پھر آتے ہیں ایک اور فعل کی قسم ہے. ایک اور فعل کی قسم ہے فعل. فعل فعل ثلاثی ہوتا ہے، فعل رباعی ہوتا ہے. صحیح. پھر فعل کی ایک اور قسم ہے
वो क्या है, फेल मुजर्रद होता है एक, और एक फेल मजीद होता है, मजीद। मजीद होता है। ये हमारे पास है फेल की ब्रांचेस, इसको हमने अच्छे से याद कर देना है। मुझे लगता है अगर कुछ रह गया हो तो आप बता दीजिएगा, लेकिन ज़्यादातर ये सारी जो ब्रांच मैंने बनाई है ना, ये जो दरख्त का बनाया है मैंने हिस्सा, ये हमारा फेल होता है। फेल लाजिम होता है, फेल मुतअद्दी होता है, फेल मालूम होता है, फेल मजहूल होता है, फेल सलासी होता है, फेल रुबाई होता है, फेल मुजर्रद होता है, फेल मजीद होता है, फेल सालिम होता है, फेल महूज होता है, फेल मुअत्तल होता है, फेल मुज़ाफ होता है, फेल सही होता है। तो ये हमारा फेल हो गया। अच्छा, इनमें से ये इतनी सारी ब्रांचेस जो है, इनमें से दो किस्म है पहले फेल की, जो कि लाजिम और मुतअद्दी आता है। लाजिम और मुतअद्दी का ताल्लुक जो है वो अगर हम देखते हैं तो वो लफ्ज़ की मीनिंग से आता है। फेल की जो लफ्ज़ की मीनिंग है उससे आता है, इसको हमने अच्छे से क्लियर करना है। लफ्ज़ की मीनिंग से कहाँ से आता है? कुछ फेल ऐसे होते हैं फेल। हाँ सिस्टर अस्सलाम वालेकुम। सिस्टर सॉरी, मैं ये कहना चाह रही थी फेल यानी कि वर्ब। वर्ब, बिल्कुल सही, फेल यानी वर्ब, बिल्कुल सही। अच्छा सिस्टर, क्या पॉसिबल है कि आप थोड़ा सा कि इंग्लिश में भी वर्ड बोलती रहें तो हमें समझ आ जाएगा? मैं हम उर्दू थोड़ी सी ना भूल गए, वो फेल और नाम लिखते हैं ना। मैं कर दूंगी सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नहीं, चलिए। अच्छा, जब हम फेल की बात करते हैं ना, यानी जब हम वर्ब की बात करते हैं तो हमारे साथ वर्ब के मुकाबले में एक और चीज़ आती है, जैसे हम कहते हैं वो है नाउन, इस्म, ठीक है ना, इस्म जिसको हम नाउन कहते हैं। हमारे पास जो सेंटेंस होते हैं वो शुरू होते हैं या तो वर्ब से शुरू होते हैं या तो नाउन से शुरू होते हैं। लाजिम और मुतअद्दी को समझाने के लिए कह रही हूँ। तो वर्ब ये हमें बहुत अच्छे से नोट करना है। जब फेल कहते हैं या वर्ब कहते हैं, वो जुमला जिसमें वर्ब होता है या फेल होता है, उसके साथ हमारे लिए ज़रूरी होती है तीन चीज़ों का होना। इसको बहुत 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 अच्छे से हमने याद करना है। एक होता है खुद वर्ब यानी वही फेल जो एक्शन होता है। दूसरा होता है फाइल, वही काम करने वाला जिसको कहते हैं हम सब्जेक्ट। और एक होता है मफऊल जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये तीन चीज़ों का ताल्लुक होता है फेल के साथ, ये तीन चीज़ों का ताल्लुक फेल के साथ था। लेकिन जब हमारा जुमला इस्मिया होता है, नाउन होता है, तो उसके लिए हमें जो ज़रूरत होती है वो होती है मुब्तदा। मुब्तदा यानी एक ऐसा लफ्ज़ जो स्टार्टिंग में आता है, स्टार्ट करने वाला नाउन जिससे स्टार्ट होता है, उसको हम सब्जेक्ट तो नहीं कर सकते, फाइल तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टार्ट करने वाला नाउन, नाउन जैसे चीज़ों का नाम। फिर उसके बाद आते हैं, इसके साथ होती है खबर। खबर वही कि जो हमने ये जो स्टार्टिंग में नाउन बताया है उसकी न्यूज़ देने वाला, उसको कहते हैं खबर। तो अभी आप देखो, इसको मुझे यही समझाना, मैं क्यों इतना अच्छे से अंदर गहराई में जा रही हूँ, ताकि लाजिम और मुतअद्दी एक दफ़ा हमारे लिए बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, फिर हमें मुश्किल ना हो लाजिम और मुतअद्दी को समझने में। और जो भी ये वीडियो देखेंगे ना, फिर उनको पता चल जाएगा कि लाजिम क्या है, मुतअद्दी क्या है। तो अभी आप देखो, फेल यानी वर्ब का ताल्लुक तीन चीज़ों से होता है, वर्ब, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फेल, फाइल और मफूल। और इसी तरीके से जो सेंटेंस, जो हमारा जुमला है वो नाउन से शुरू होगा, इसम से शुरू होगा, उसमें मुब्तदा खबर आगे, वो स्टार्टिंग का नाउन होता है, और वो जो स्टार्टिंग का नाउन होता है उसकी न्यूज़ देने वाला खबर। तो मुब्तदा और खबर फेल में कभी नहीं आएंगे, इसको हमें नोट करना है। मुब्तदा खबर फेल में नहीं होंगे, और इसी तरीके से फेल, फाइल, मफूल इसम में नहीं होंगे। ये दोनों अपोजिट चीज़ है, ये दोनों साथ में नहीं आएंगे। लेकिन कभी आप फाइलुन के वजन, मफऊलुन के वजन पर फेल में देखते हो तो आप कहोगे ये इसमें फाइल है, ये इसमें मफूल। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसमें फाइल और इसमें मफूल को खोलूंगी। फिलहाल इसको हम समझते हैं, इसमें फाइल यानी फाइलुन के वजन पर खुद फाइल हो, मफऊल खुद मीम पे एन वाव लाम इस तरह से लिखा, उसको कहते हैं इसमें फाइल और इसमें मफूल। ये हो गया हमारा मुब्तदा और ख़बर का, और ये हो गया हमारा फ़ेल का। अब हम आते हैं असल फ़ेल की तरफ, जो हमें लाजिम और मुतअद्दी समझाना है। हमारे पास फ़ेल की दो किस्में, मैंने अभी आपको बताया कि दो किस्में हैं। जब हमने कहा
फेल जुमला फेलिया, ये जो सेंटेंस हमारा वर्ब वाला होता है, उसके अंदर हमें फेल फाइल मफूल वर्ब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती ही होती है। तो उसमें कुछ फेल, कुछ लफ्ज़ होते हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको जब हम बताते हैं तो वो फेल और फाइल पे ख़त्म हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहती हूँ जलसा मुहम्मदुन, मुहम्मद बैठा, बात ख़त्म हुई ना। हमें जहन में आता है कि मोहम्मद क्यों बैठा, कहाँ बैठा, किसको बैठा, नहीं ना, मोहम्मद बैठा, बात ख़त्म। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ ज़हब तो मैं गई, ज़हब तो मैं गई, बस मैं गई, बात ख़त्म। लेकिन कुछ हमारे जुमले ऐसे होते हैं जो फेल और फाइल, जैसे अभी मैंने कहा कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो फेल और फाइल यानी वर्ब और सब्जेक्ट पे ख़त्म हो जाते हैं, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन कुछ हमारे पास फेल ऐसे होते हैं जो फेल के बाद फाइल और फाइल के बाद मफऊल तक आप पहुँचते हैं। तो उसमें जैसे मैं कहती हूँ ज़रबा मुहम्मदुन करीमन, आपने देखा मारा मोहम्मद ने करीम को। अच्छा, एक और चीज जो हमें याद करनी है, फेल के बाद जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा पेश लेता है। जब पेश लेगा तो हम समझ जाएंगे कि ये काम करने वाला है। और जो ऑब्जेक्ट होता है, मफूल होता है, वो हमेशा ज़बर लेता है और जहाँ से हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर काम किया जा रहा है। और फिर जब हम उर्दू में तर्जुमा करते हैं तो जब हम सब्जेक्ट का, फाइल का जो हम तर्जुमा करेंगे, ज़रा मोहम्मद ने मारा, मोहम्मद ने ये काम किया, फलाने ने ये काम किया। जब हम कहते हैं कि फलाने ने ये काम किया, उसने ये काम किया, तुमने ये काम किया, मैंने ये काम किया, ये जो हम कहते हैं ना, ये काम किया करने वाला सब्जेक्ट होता है, वो पेश लेता है। लेकिन जो प्रोनाउन होंगे वो तो कभी पेश नहीं लेंगे, लेकिन प्रोनाउन तो प्रोनाउन होते हैं, प्रोनाउन हो या इसमें ज़ाहिर में। करीमन मफऊल जो होता है वो हमेशा ज़बर लेता है और इसका तर्जुमा हम जब करते हैं उर्दू में तो होता है का, की, को। कैसे पता चले कि ये लाजिम है और मुतअद्दी है? तो जब हम मुतअद्दी जो होता है वो फेल, फाइल, मफूल, वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तीनों चीज़ों को तलब करता है और तीनों का जुमला हमारा फिट आ जाता है। जैसे मैं कहती हूँ ज़रब मुहम्मदुन करीमन, मारा मोहम्मद ने करीम को, जुमला सेट हो गया ना, मारा मोहम्मद ने करीम को। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे क्योंकि मारा मोहम्मद ने करीम को सही आ गया, करीम को मारा। तो यहाँ कहेंगे कि ये ज़रब जो लफ्ज़ है ये मुतअद्दी है। मुतअद्दी ये मीन्स जो आगे बढ़ जाता है, तजावुज़ करता है, लिमिट क्रॉस कर ली इसने, फेल फाइल से क्रॉस करके ये मफूल तक आ गया, तो इसको कहेंगे मुतअद्दी। अभी देखिए मैं यहाँ तर्जुमा करती हूँ, मेरा तर्जुमा आप देखेंगे गलत हो रहा है या सही हो रहा है। जलस मोहम्मदुन कुर्सियन, मोहम्मद बैठा कुर्सी को, ठीक हो? हाँ, कुर्सी को ठीक हो रहा है तर्जुमा मेरा? ना, बिल्कुल गलत हो रहा है। कुर्सी को कैसे हो सकता है? कुर्सी को कुर्सी पर होता है ना। तो जहां पर भी हम देखना चाहते हैं कि हमारा लाजिम है या मुतअद्दी है, सिस्टर समझ ये आपको बहुत मुश्किल लगेगा क्योंकि ये आप, मुझे लगता है ये जो लेसन है ना हमारा, ये थोड़ा आगे का है, तो मुझे लगता है ना थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास कुछ वर्ब की किस्में होती हैं, कुछ वर्ब जो होते हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट चाहते हैं और कुछ सिर्फ सब्जेक्ट पर बात ख़त्म कर देते हैं। पता कैसे चले कि ये सिर्फ सब्जेक्ट को ही चाह रहा है, ऑब्जेक्ट इसमें आ ही नहीं रहा? तो हम जब उर्दू में तर्जुमा करते हैं ना, जैसे जलस मोहम्मदुन, मोहम्मद बैठा, बात ख़त्म, तो ये हम समझ जाएंगे कि ये लाजिम है, यानी ये बात, इसकी बात ख़त्म हो गई फाइल तक, सब्जेक्ट तक। लेकिन मुझे जानना है कि वाकई ये लाजिम है, ये वाकई फाइल तक बात ख़त्म करता है तो नहीं या नहीं। तो मैं इसके साथ एक और नाउन लगा के देखूंगी और वो नाउन ज़बर वाला होगा, यानी वो ऑब्जेक्ट होगा। तो तर्जुमा अगर मेरा फिट आता है तो ठीक है, तो फिर वो मुतअद्दी होगा। अगर तर्जुमा वो ठीक नहीं आता तो फिर ये लाजिम होगा, यानी वो फाइल से आगे नहीं जाएगा।
जलस मोहम्मदुन कुर्सियन, मोहम्मद बैठा कुर्सी को। कतब तो मैंने लिखा, कतब कतब तो मैंने लिखा, तो यहाँ फाइल हो गया ना, सब्जेक्ट हो गया, मैंने लिखा कलमन, सही है, मैंने लिखा कलम को। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं। नहीं, क्योंकि मैंने कलम के जरिए से लिखा, कलम मेरा हेल्पर हो गया। तो यहाँ पर ये लफ्ज जो बिल्कुल भी देखिए, कलमन किया मैंने, ऑब्जेक्ट किया, और ये ऑब्जेक्ट के साथ इसका तर्जुमा ठीक नहीं आया, तो ये हमारा हो जाएगा लाजिम। और अगर ऑब्जेक्ट के साथ हमारा तर्जुमा ठीक आता है तो ये हो जाता है हमारा मुतअद्दी। क्लियर? चले, ये हो गया हमारा लाजिम और मुतअद्दी की तारीफ। ओके, अब हम आते हैं दूसरे सवाल की तरफ। जो हमारा दूसरा सवाल है वो है लाजिम और मुतअद्दी को बनाने का तरीका। जबरदस्त हो गया। अच्छा, ये बहुत सिस्टर लाजिम और मुतअद्दी को क्या कहते हैं? लाजिम और मुतअद्दी को मुझे नहीं पता इंग्लिश में, लेकिन वर्ब है, ये वर्ब है जी, वर्ब है। देखिए ये है ना, अभी देखिए मैं इसको इंग्लिश में थोड़ा सा आपको इसको एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास वर्ब है, ठीक है, वर्ब की दो किस्में हैं। वर्ब, एक वर्ब है जो आता है जिसमें अंदर एक वर्ब आता है ना, जिसे हम फेल कहते हैं, एक एक्शन है, सही। अच्छा, उसके बाद वो प्लस करता है सब्जेक्ट को, लेकिन बात जो है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और सब्जेक्ट तक जब खत्म हो जाती है तो उसको कहते हैं फेल लाजिम, ठीक है। हाँ, और जब बात वर्ब में हम आते हैं, उसमें वर्ब भी होता है, यानी कोई एक्शन भी होता है, प्लस सब्जेक्ट भी होता है, और प्लस ऑब्जेक्ट भी, जबरदस्त, प्लस ऑब्जेक्ट भी होता है, तो उसको कहते हैं मुतअद्दी, यानी वही, यानी क्रॉस करने वाला। जी, थैंक यू। ये है हमारा। तो अब एक चीज जो है वो थोड़ी सी, अभी इसको बनाने का तरीका, यहाँ तो हमें पता चल गया कि लाजिम और मुतअद्दी क्या है। ये मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से मैंने समझाया है, और ये वीडियो भी मैं इंशाल्लाह डाल दूंगी, तो हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और जिसको भी फिर लाजिम और मुतअद्दी जानना होगा तो ये वीडियो देख सकते हैं, आराम से पता चल जाएगा। अच्छा, अब हम आते हैं लाजिम और मुतअद्दी बनाने का तरीका। पहली बात यहाँ ये आती है कि हम जो है लाजिम, हमारे पास लाजिम है, लाजिम यानी लाजिम यानी ऐसा फेल, यानी ऐसा वर्ब। लाजिम मीन्स ऐसा वर्ब, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं सिस्टर समर, कि लाजिम यानी एक ऐसा वर्ब जो सिर्फ और सिर्फ जिसमें फेल यानी वही वर्ब होता है, और फिर वर्ब और सब्जेक्ट। अब बात यहाँ पर खत्म हो जाती है। अभी थोड़ा आपको आगे जो हम करेंगे ना, थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा मुझे लगता है, लेकिन लाजिम। मुतअद्दी में क्या होता है? मुतअद्दी में होता है फेल, वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत अच्छा, यहाँ हमारे पास मफऊल भी आ गया, तीनों चीजें हैं, यानी ऑब्जेक्ट भी आ गया ना। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि जब हम कहते हैं कि हमने फेल लाजिम से मुतअद्दी बनाना है, सबसे पहली बात यहाँ ये आती है कि हमने लाजिम से मुतअद्दी बनाना क्यों है? आखिर क्या रीजन है कि हम लाजिम से मुतअद्दी बनाते हैं? इसके दो रीजन हैं। एक तो सबसे पहले बात यहाँ ये आती है, इसके दो रीजन हैं। एक तो रीजन यही आता है कि हमें कभी कभी लाजिम जो है, कभी कभी हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। जैसे मैंने अभी कहा कतब तो मैंने लिखा, ये तो जो है ये इसका फाइल है, ये इसका सब्जेक्ट है, और कतब इसका फेल है, ये इसका वर्ब है, ये इसका फेल हो गया। कतब तो, अच्छा मैंने कहा क्यों मुझे जरूरत पड़ी कि मैं इसको मुतअद्दी बनाऊं? बिल फेल और बिल कलम के जरिए से, क्योंकि मैंने एक चीज से मदद लेकर लिखा ना। फिर मैं कहती हूँ जलस तो मैं बैठी, अलल कुर्सी पर बैठी, यानी मुझे एक लफ्ज की जरूरत है कि मैं जैसे उसके सहारे से कोई काम कर सकती हूँ। लाजिम में सहारे की वजह से, जब हमें किसी चीज का सहारा लेना पड़ता है तो उस सहारे की वजह से हमें लाजिम को मुतअद्दी बनाना है। नंबर 1। नंबर दो, अभी थोड़ा सा ये जो नंबर 2 है ना, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, लेकिन क्योंकि डिफिकल्ट
مجھے لگتا ہے سسٹر سمر آپ کے لیے تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوگا کیونکہ یہ آپ کے لیے فرسٹ ٹائم ہے نا. چلیں جی جی آپ کو پتہ ہے فعل ابھی میں نے کہا فعل کی ہمارے پاس دو قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے معلوم فعل معلوم یعنی جس کا ہمیں پتہ ہے. ایک ہے فعل مجہول جس کا فعل معلوم کیا ہے. فعل معلوم نوٹ کریے گا فعل معلوم کی دو قسمیں ہیں لازم متعدی. یہ فعل معلوم کی قسمیں ہیں. فعل معلوم وہ فعل ہوتا ہے فعل معلوم مینس جس کا فاعل پتہ ہو یعنی جس کا سبجیکٹ ہمارے پاس موجود ہو چاہے وہ لازم ہو یا متعدی. اس سے ہمارا کام نہیں ہے. فعل معلوم جس کا سبجیکٹ بھی پتہ ہو یا ہاں پاسبل ہے کہ آبجیکٹ بھی ہو لیکن سبجیکٹ اس میں ہر حال میں موجود ہوتا ہے. معلوم یعنی 100% جس کا سبجیکٹ پتہ ہو. اوکے اب دوسری قسم ہے فعل کی وہ ہے فعل مجہول. فعل مجہول کا مطلب ہے کہ جس کا فاعل گم ہوتا ہے جس کا سبجیکٹ ہوتا ہی نہیں. اگر ہوتا بھی ہے تو لاپتہ یعنی فاعل اس کا گم فاعل ہوتا ہی نہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں ایک ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں جیسے ہم نے لکھا قتل الحسین پیشہ کیا قتل الحسین. عظمت آبا اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ حسین کو قتل کیا گیا. حسین کو قتل کیا گیا. کس نے قتل کیا؟ نہیں معلوم کہ کس نے کیا قتل. نہیں پتا یعنی کہ ہاں جو فاعل ہے وہ گم شدہ ہے یہاں پر. بالکل صحیح. تو آپ دیکھو یہاں پر امام حسین قتل کیے گئے. ٹھیک ہے قتل کیے گئے امام حسین. قتل الحسین حسین قتل کیے گئے لیکن کس نے قتل کیا نہیں پتا. کام کرنے والا پتا نہیں ہے کہ کون ہے. تو یہاں پر مجہول کا مطلب ہوتا ہے جس کا فاعل جو ہے وہ پتا نہیں. اب گڑبڑ کہاں پر ہوتی ہے؟ پرابلم یہاں یہ آ جاتی ہے کہ جب ہمارے پاس فعل معلوم لازم ہوگا تو لازم تو آلریڈی لازم کے اندر تو صرف فعل اور فاعل ہوتا ہے. لازم میں فعل اور فاعل ہوتا ہے یعنی ورب اور سبجیکٹ ہوتا ہے. اب کیا کریں ہم؟ اب مجہول میں کیا ہوتا ہے؟ مجہول میں تو صرف فعل ہوتا ہے اور آبجیکٹ ہوتا ہے. اس میں تو فاعل ہوتا ہی نہیں. اب دیکھو یہ دونوں کتنے ایک دوسرے سے اپوزٹ ہیں. دونوں اپوزٹ ہے نا ہمارے پاس. ہاں اب دونوں بالکل اپوزٹ ہو گئے. یہاں مجہول میں ہمارے پاس فعل ہے اور آبجیکٹ ہے. فعل لازم میں ہمارے پاس فاعل ہے اور ورب ہے. یہاں فاعل نہیں ہے یہاں مفعول نہیں ہے. اب یہ بات آتی ہے کہ مجھے جب فعل معلوم لازم کو اب دیکھیں اس کی پوری لائن یوں کھینچیں گے. جب مجھے فعل معلوم لازم کو مجہول بنانا ہے تو میں کیسے بناؤں گی؟ یہاں پر یہ بات آتی ہے بنانا بھی ضروری ہے اور جب بناؤں گی تو ارے اس میں تو فاعل موجود ہے اس میں تو مفعول ہے اس میں تو مفعول نہیں ہے اس میں تو فاعل نہیں ہے. اب میں کیسے کروں گی؟ تو یہاں پر یہ بات تو سب سے پہلی بات یہ آتی ہے کہ مجھے لازم کو متعدی بنانا کیوں ہے. ایک میں نے آپ کو میننگ بتا دی. دوسری میننگ میں یہاں آپ کو یوں بتاتی ہوں کہ یہ لازم بھی کبھی کبھی مجہول ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس کے اندر بھی فاعل چھپ جاتا ہے. تو فعل معلوم لازم ورب جس کا فاعل سبجیکٹ پتہ ہے اس کو جب ہم نے مجہول بنانا ہے کہ جس کا ورب لاپتہ ہو اور آبجیکٹ ورب کی جگہ پر بیٹھا ہو اس کو بنانے کی ہمارے پاس کتنی قسمیں ہیں سعیدہ آپا؟ 3 قسمیں ہیں. 3 قسمیں ہیں. ایک حرف زر کے ذریعے, ایک باب فعل میں ڈال کے, ایک باب تفعیل میں ڈال کے. زبردست ہو گیا. ہمارے پاس اس کے بنانے کی 3 قسمیں ہیں.
سب سے پہلے جب ہم کہتے ہیں تو حرف جر ہمارے پاس ہے الا، بے، من، فی، الا اور 17 حروف جر ہیں جو ہم نے کرنے. لیکن زیادہ تر جو ہم لازم سے حرف جر جو ہم لازم سے متعدی بناتے ہیں وہ ہوتا ہے ہمارا با. اب یوں سوچیں کہ 99% با استعمال ہوتا ہے یا 80%. اس کے علاوہ آپ دیکھیں دوسرے لفظ استعمال ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر با استعمال ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے متعدی بنانے کے لیے جیسے میں نے کہا ذہب تو الی المسجد، فار ایگزامپل میں مسجد کی طرف گئی. یہ جو با ہے نا یہ مجہول، جب ہم مجہول لازم سے جب ہم متعدی بناتے ہیں اور متعدی سے جب ہم مجہول بناتے ہیں تو مجہول بناتے وقت ہمیں با کی ضرورت ہوتی ہے. 99% مجہول میں با آتا ہے. ذہبت الی المسجد، یہ میں نے الا جو ہے یہ آ گیا ہیلپر آ گیا. اب میں اس کا تجزیہ ترکیب کرتی ہوں. ذہب فعل یعنی وہی ورب، تو اس کا فاعل وہی اس کا سبجیکٹ، الا حرف جر یعنی ہم کہتے ہیں پریپوزیشن، اور پھر ہم آتے ہیں مسجد، یہ ہمارا ناؤن ہو گیا. مسجد کو کہیں گے مجرور. لیکن ہم کیا کہیں گے، ایک اور چیز ہم کہیں گے، جار و مجرور مل کر کیا بنے، جار و مجرور. بہت زبردست، مفعول. جار و مجرور، بہت اچھا. جار و مجرور مل کر آبجیکٹ بنے. اب ہم نے جب ہم نے ذہب تو الی المسجد کر دیا تو جار و مجرور مل کر آبجیکٹ بنے نا. تو جب ہم صرف بھی کریں گے نا اس وجہ سے آتا ہے، جیسے ذہب جب مجہول بنائیں گے تو پھر ہم نے ذہب بھی، اس وجہ سے کیونکہ یہ مین چیز ہے جس کی وجہ سے لازم کو جب ہم حرف جر کے ذریعے سے متعدی کرتے ہیں اور پھر اس کو مجہول بنا کے ہم صرف کریں گے تو ہم اس کو صرف نہیں کریں گے بلکہ حرف جر کے ساتھ ہم پروناؤن لگا کر صرف کریں گے. چلے یہ ہو گیا ہمارا بنانے کا ایک طریقہ. اور دوسرا طریقہ جب ہم آتے ہیں وہ باب افعال میں. دوسرا جو ہمارا طریقہ ہے لازم سے مجہول بنانے کا وہ باب افعال ہے. افعل یفعل، افعال، اجلس لکھا پہلے میں، اجلس پاسٹ ٹینس، اجلس یجلسو، اجلاس. اس کو پھر ایسے میں لکھتی ہوں اجلس. ابھی آپ مجھے بتائیے گا اس کا ترجمہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ اجلس محمد حامدن. اوکے نسیم آپا اس کا ترجمہ کریں گے؟ ہے نسیم آپا ہمارے ساتھ؟ ہاں جی آنٹی. اجلس محمد، اس کا ترجمہ اجلس محمد حامدن. بٹھایا، محمد نے بٹھایا کون ہے بیجو؟ حامد. حامد کو. ترجمہ ٹھیک ہوا سسٹر سمر؟ آپ نے دیکھا ترجمہ ٹھیک ہوا نا؟ بٹھایا محمد نے حامد کو. پرفیکٹ ترجمہ ہے نا؟ جی. تو ابھی ہم اس کو باب پہ لے گئے اور باب جیسے اجلسہ ہم نے کر دیا. اور باب جو ہوتا ہے نا جیسے ہوتا ہے جلسہ میں بیٹھی، اجلسہ بٹھایا، نزل اتار، اور نزل اترا خود اترا، انزل اتارا. تو تھوڑا سا باب کی میننگ چینج ہو جاتی ہے اور پھر اس میننگ کو چینج کر کے ہم بنا دیتے ہیں. پھر ہم آتے ہیں باب تفعیل کی طرف. باب تفعیل میں آپ کو پتا ہے یہ جو لفظ ہے نا نزل، یہ ہمارے پاس نزل لازم ہے. یہ لفظ جو ہے یہ لازم ہے. ابھی پھر میں بناتی ہوں فعل. باب تفعیل کا فعل ماضی فعل، یفعل، تفعیل،
तफील। अच्छा, इसका तर्जुमा करिएगा आप मीनू आबा, आप करेंगे ना? नज क्यों कर रही है? चलिए मीनू आबा, इसको आप तर्जुमा करेंगे? क्या हाँ, करूँ? मैं अभी लिखती हूँ। हाँ, अभी लिखती हूँ। नज़्ज़लल्लाहु अल-किताब। चलिए। नज़्ज़लल्लाहु, अल्लाह ने बार बार नाजिल किया किताब को, बहुत अच्छा, स्टेप बाय स्टेप नाजिल किया। जबरदस्त, बहुत बहुत अच्छा। अल्लाह ने नाजिल किया स्टेप बाय स्टेप, या बहुत दफ़ा, या थोड़ा थोड़ा करके, या बार बार, अल किताब, किताब को। बहुत अच्छा, आपने देखा यहाँ पर फिर वो मुताद्दी बन गया, ठीक है ना? तो हमने देखा कि लाजिम को मुताद्दी बनाने के 3 तरीके हो गए। ये हमारा तीसरा सवाल, दूसरा सवाल हो गया। अब हम आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल है फ़िल अम्र, बाब तफ़ील का फ़िल अम्र सर्व करना है। तो मुहद्दिस साहबा, आप हैं ना हमारे साथ? हाँ, मुहद्दिस साहबा, आप इसको सर्व करेंगे? कोई भी आप लफ्ज़ ले लें। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। आंटी, कोई भी लफ्ज़ ले लें। पहले अम्र करो है। अम्र करना है बाबे, कौन सा मैंने लिखा है? बाबे तफ़ईल में ना, बाबी इफाल था आंटी। पहले बाबी फियल इफाल है सॉरी, आंटी। हाँ हाँ, बाबे इफ़ाल है। पहले माजी मुजारे, और उसको तो वो बनाना है पहले, माजी मुजारे, इसमें फ़ाइल और इसमें मफ़ऊल हाँ। बनाना है। या नहीं, ये या। तो मैं एक मिनट जी मुहद्दिस साहबा, एक मिनट, मैं कहती हूँ ये जो हमारा तीसरा सवाल है ना, फ़िल माजी मुजारे, इसमें फ़ाइल, इसमें मफ़ऊल, ये तो हमने कर लिया है ना? जैसे हम कहते हैं अज़रबा, युज़रिबु, मुज़रिबुन, मुज़रबन, ये हो गया ना? ये आसान है। हाँ, तो हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है, तो बाबे तफ़ईल का फ़िल अम्र। हाँ हाँ, ओके, करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लियुकज़्ज़िब, बराबर आंटी? जी, कौन सा लफ्ज़? लियुकज़्ज़िब, कज़ब, कज़ब क्या है ना? हाँ, कज़ब, ओके ओके, आपने क्या? युकज़्ज़िब, लियुकज़्ज़िब, हाँ, ओके, बहुत अच्छा। लियु कज़िब, जबरदस्त। हाँ, लितुकज़्ज़िब, लितुकज़्ज़िब, बहुत अच्छा। लियुकज़्ज़िब, लियुकज़िब, बच्ची, एक और फिर से, लियुकज़िब, लियुकज़्ज़िबना, हाँ, बहुत अच्छा। चले, कज़्ज़िब, हाँ, कज़्ज़िबा, बहुत अच्छा। कज़्ज़िबी, हाँ कज़्ज़िबा, हाँ, कज़्ज़िब, बच्ची, लियुकज़्ज़िब, लिनुकज़्ज़िब। बहुत अच्छा। लियुकज़िब, लिनुकज़िब, जबरदस्त। मुझे यही देखना था, ये मैं सिर्फ यही देखना चाहती थी। ये तो हमें आता है, लेकिन जो आपने कहा ना मुहद्दिस साहबा, कज़िब, ये बहुत यही परफेक्ट है। कज़िब, कज़िबा, कज़िबू, कज़िबी, कज़िबा, कज़िबना, और फिर लियुकज़िब, लिनुकज़िब। बहुत अच्छा। चलिए, हमारा चौथा सवाल हो गया। हाँ, अज़मत आपा, ये वाला, अहसद ज़र्अ तव्वफ़ ज़ैदुन, ये आप बताएं कि ये किस मीनिंग में आ रहा है बाप के? अहसद, अहसद ज़रअ, ये अहसद क्योंकि बाब इफ़आल है, यानी एक टाइम की मीनिंग, टाइम का हो जाना, यानी कि फसल पक गई तो अब यानी फसल काटने का टाइम आ गया। तो मैंने ये लिखा था कि ये टाइम की मीनिंग दे रहा है, यानी कि दुखुलुल फ़ाइल फी ज़मान। हाँ, कह सकते हैं, जबरदस्त। हाँ, हम कह सकते हैं दुखुल, हाँ, दुखुल ज़मान भी कह सकते हैं, दुखुल फ़ाइल फिर ज़मान भी कह सकते हैं। ज़बरदस्त हो गया, बहुत अच्छा। चले, कौन है? एलिज़ा, आप बताएंगे ये जो हमने लफ्ज़ लिखा है, इसके बाद वाला कौन सा है? तव्वफ़ ज़ैदुन, ये कौन से उसमें आता है? तव्वफ़ ज़ैदुन, बाबे तफ़ईल।
तब वफा जैदुन। अंजुम आप बताएंगे? एलिजा आपका आवाज? जी 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 एलिजा, अब आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ आती है। हाँ ओके चलिए, तब वफा जैदुन। बाबे तफील। जबरदस्त, बाबे तफील। लेकिन बाबे तफील के किस मीनिंग में आ रहा है? तकसीर की मीनिंग यानी बहुत ज्यादा की मीनिंग में आ रहा है, मुतअद्दी की मीनिंग में आ रहा है? जी किस मीनिंग में आ रहा है? जी अंजू आप बताएंगे? जी 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 ये तवफ़ल जैदुन हाँ। बाबे तफील का माजी का पहला सिगा आ रहा है, और ये तकसीर की उसमें मीनिंग में आ रहा है कि बार बार कसरत से आ रहा है। हाँ एलिजा आपकी आवाज कट गई मुझे लगता है। चलिए ये कसरत की मीनिंग में आ रहा है, जबरदस्त हो गया। चलिए अब हम आते हैं, लास्ट हमारा सवाल है क्योंकि मैं उसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये आज जल्दी क्लास ले ली। आज जल्दी हो गई। पिछली दफा 4:30 बजे ली थी तो मैंने 4:30 बजे किसी तरह मैसेज किया आपको टाइम। तारा में क्या है कि हमारी जो और क्लासेस भी होती है ना, तो हम और क्लासेस में हाँ। बता देती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ अलग से मैसेज करना कभी कभी। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम माह रमजान के बाद ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह। चले कोई बात नहीं, अब मैं वीडियोस से करूंगी। पिछली वो बाबे मुफाइला वाली वीडियोस भी मिली नहीं है अभी तक। हाँ मैं इंशाल्लाह 4 वीडियोस हैं, आज की वीडियोस के साथ मिला के 4 वीडियोस हैं ना, तो मैं इंशाल्लाह 2-3 दिन में भेज दूंगी सब, क्योंकि फिर आपको पूरा शाबान है पूरा माह रमजान है, आप फिर आराम से तैयारी कर सकते हैं। चले अब हम इंशाल्लाह चले अब हम आते हैं सवाल नंबर 5 पर। तज्जिया तरकीब करना है, एनालाइज करना है इस आयत का। हमारे पास एक आयत है, कहाँ गई? हाँ ये वाली आयत है, ये आयत है ना कुरान, फ़इन लम तफ़अलू वलन तफ़अलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। चले ये बहुत आसान है और इसको करना है। चले चले को मैं इसको शुरू करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ गया? गुम हो गया मुझसे, 1 मिनट। चलिए फ़इन लम तफ़अल वलन तफ़अल फत्तकुन नार अल्लती। इसको जल्दी से करते हैं, मेरा सब साथ देंगे ना आप लोग? एलिजा, अज़मत आपा जी, ताहिरा बिन सब मेरा साथ देंगे। मिनू आपा, आमिना आपा नहीं है ना आज, काफी लोग। चले अंजुम, हम सब मेरा साथ देंगे। फ प्लस इन, ओके मैं ऐसे लिखती हूँ ताकि हम हमारे लिए अलग अलग हो जाए। लम प्लस तफ लू व लन। जो मैंने अलग अलग लिखे ना, उसको अलग अलग मीनिंग हमें करनी है। तफ़अलू फ इत्तक़ू अन्नार अन्नार अल्लती वक़ूद। ये वक़ूद प्लस है यहाँ, अन्नास सो वल हिजारा। तो चले फ सब मेरा साथ। हरफियत हरफियत
حرف عطف. جملة شرطية. انشائیہ. انشائیہ. مینو آپا یہی میں سننا چاہتی تھی, انشائیہ. جملہ پہلے میننگ نہیں کرے ہیں. ہاں اس کا میننگ میں نے نہیں لکھا نا, میں نے تجزیہ ترکیب لکھا. نہیں چلے پہلے میننگ کرتے. نسیم آپا اس کی میننگ کر لیں تھوڑا سا. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, بس اگر ہرگز نہیں تم لوگوں نے کیا. پاسٹ پریزنٹ فیوچر. لن اور لما یہ لو جو میننگ کریں گے تو پاسٹ کی کریں گے. پاسٹ کی کریں گے. ولن تفعلوا, اور ہرگز نہیں. بس ادھر بس عیدت کیا تم لوگوں نے. کیا تم لوگوں نے. یہ پاسٹ میں نہیں ہوگا. لن جو ہے پاسٹ میں نہیں ہے, لم صرف پاسٹ میں ہے. تو کریں گا. کریں گے. فیوچر میں. ہاں, اور ہرگز نہیں کریں گا تم لوگوں نے. فتقوا, بس اپنے آپ کو بچاؤ نار, آگ کو. آگ سے. کیسی آگ؟ جنم کی آگ. وہ جو لوگ اور پتھر ہو گئے جو وقودها ایندھن ہے اس کا, اور اس کا ایندھن ناس و لوگوں اور پتھروں. زبردست, بہت اچھا. فا حرف عطف ہو گیا. جملہ انشائیہ شرطیہ. اوکے, فا حرف عطف ہو گیا. ان حرف شرطية. شرط. حرف شرطية. حرف شرطیہ یا حرف شرط. لم حرف جازمة. تفعلوا فعل معلوم مضارع مجزوم. بہت اچھا. فعل مجزوم معلوم. اوکے, سمپل اگر ہم کہیں تو. واو اس کا فائل ضمیر متصل مرفوع. زبردست. ضمیر متصل مرفوع اور اس کا فاعل. فاعل بھی. ایک منٹ سسٹر سمر, انشاءاللہ جب ہم شروع کریں گے نا, بالکل شروع سے کریں گے, تو پھر میں سب کی میننگ انگلش میں بتا دوں گی. ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی یہ لوگ یوز ٹو ہو گئے ہیں نا, تو اس لیے میں اس میں کر رہی جلدی. سب کو مجلس میں جانا ہے. چلیں. اچھا, واو حرف عطف. لن حرف ناصبہ. زبردست. حرف ناصبہ. تفعلوا فعل معلوم مضارع منصوب. زبردست. اچھا, واو واو اس کا فاعل بھی ہے اور کا ضمیر متصل مرفوع. فاعل ضمیر متصل مرفوع. زبردست, ہو گیا. اور جمع مذکر مخاطب کی بھی نشانی ہے. مخاطب جمع مذکر مخاطب. زبردست, ہو گیا. اچھا, یہاں پر ہم نے کہا یہ ہمارا جو جملہ ہے, یہ جملہ شرطیہ ہو گیا. یہ پہلا شرط, یہ دوسرا شرط. ٹھیک. اچھا, فا عطف ہو گیا. اتقوا فعل امر سے باب تفعیل. افتعال سے نہیں ہوگا. باب افتعال امر مخاطب. تیسرا صیغہ امر مخاطب کا تیسرا صیغہ واو, اس کا فاعل بھی اور ضمیر متصل مرفوع بھی ہو گیا. ٹھیک ہے. اچھا, اور پھر یہ باب افتعال ہے. افتعال, اس کے روٹ ورڈز کیا ہوں گے؟ وقیا سے کیا؟
इस मारिफा मारिफा बना जबरदस्त मारिफा मारिफा अन्नार मफऊल 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 क्योंकि जबर ली है अल खास जबरदस्त खास वही मारिफा हो गया खास हो गया और मफऊल हो गया अल्लती इसमें मौसूल जबरदस्त इसमें मौसूल हो गया इसमें मौसूल वकूदुहा अन्नार वल हिजारतु ये हो गया इसका सिला वकूद ये मुब्तदा मुब्तदा सदा के चार मजरूर मुज़ाफ इलैहि हाँ पहले हो गया मुब्तदा ठीक है ना फिर हो गया वकूदुहा मुज़ाफुन इलैहि हो गया अन्नास अन्नास वल हिजारा खबर है इसकी खबर वल हिजारा ये भी खबर अल क्या है खबर अल क्या है अल मारिफा बनाने की नहीं इसको कहेंगे कुल्लु कुल्लुल इंसान व कुल्लुल हिजारा कुल है कुल हो जाएगा हाँ जितने भी इंसान अब देखिए नास कहा है अल्लाह ने ये आप नोट करिएगा अल्लाह ने वकूद हल इंसानों नहीं कहा नोट वकूद हल बशर नहीं कहा वकूद हल नासो कहा है नास और इंसान और बशर और मरा ये चार लफ्ज है ना ये फर्क रखे और इंस जैसे कहते हैं जिनो इंस इनमें फर्क है इनकी मीनिंग को आपको मैं देती हूँ फिर से ये मिटा दूं मैं ये हमारा हो गया क्या कहेंगे हम कुल कहेंगे खाली कुल कहेंगे वो अल है ना अल आप मारिफा भी कह सकते हैं और आप कह सकते हैं कि अल जो है ये कुल की मीनिंग में आ रहा है जैसे नहीं हमने कहा था अल इस्तगराक की मीनिंग में भी है तो हम यहाँ इस्तगराक भी कह सकते हैं कि गर्क हो जाएंगे तमाम इंसान और पत्थर उस ईंधन में तो इसकी मीनिंग आपको करके आनी है अन्नास इसमें फर्क क्या है अल इंसान अल इंस देखिए नास इंसान और इंस इनकी बहुत फर्क है इनकी मीनिंग में फिर आते हैं बशर का तो अज़मत अब आपको याद है आपने बशर इंसान आपने कहा था जो बदलता रहता है इंसान जो बदलता रहता है थाली का बैंगन थाली का बैंगन बहुत मजे का है थाली का बैंगन क्रिकेट मरा हनी अन मरिया आपको पता है ना हनी अन मरिया अरे हाँ जो डाइजेस्ट हो जाता है जो डाइजेस्ट हो जाता है इंसान आशिक बनकर इश्क में गुम कर दे उन्स जो चाहता है कि मुझे कोई सुने मेरे दुख दर्द रंज में आ जाए ये मैं थोड़े से बताती हूँ 3 ये 4 और ये नंबर 5 देखिए कुरान में ये पांचों आए हैं इस्तेमाल हुए हैं लेकिन पांचों को ये आपको नोट करना है कि कुरान में जब नास इस्तेमाल हुआ है तो इंसान क्यों नहीं देखिए अल्लाह ने इंसान को 5 लफ्जों से पुकारा है लेकिन अल्लाह ने चूज किया है कहाँ मुझे नास बोलना है कहाँ इंसान कहाँ इंस कहाँ बशर और कहाँ मरा तो जहाँ जहाँ पर भी ये लफ्ज होंगे ये आपकी क्या कहते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इसका परफेक्ट तर्जुमा करना है हर जगह इंसान 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 बोलना गलत है बिल्कुल गलत है ठीक है हक नहीं अदा होगा तो हमें लगता है काफी आपको मजलिस पे जाना है हम एक साल बाद पढ़े खुदाया पाक परवरदिगार अल्लाह हमारी छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा और बस मैं आपको इंशाल्लाह ये जो हमारी मंडे को और ट्यूसडे को शाम को ये क्लास होती है ये अभी माह रमज़ान के बाद होगी और जो हमारी बड़ी क्लासेस हैं जो बड़े बच्चे हैं उनकी क्लास ऑफ नहीं होगी छोटे छोटे बच्चों की छुट्टियाँ हैं बड़ों की नहीं है तो इंशाल्लाह माह रमज़ान के बाद होगी बाकी क्लासेस हमारी वैसी छुट्टी नहीं है बड़ों के लिए छुट्टी नहीं है अभी आपको डिप्लोमा लेना और आपको हार्ड वर्क करना तो आपकी छुट्टी नहीं है इंशाल्लाह माह रमज़ान के बाद हम जी इंसान उन्स से निकला है ना थैंक यू आंटी खुदा हाफिज इंसान उन्स से भी कह सकते हैं और नसैया से भी कह सकते हैं
दोनों चीज़ों से कह भूलने सकते वाला, हैं। हाँ, भूलने वाला। भूलने वाला। इंसान असल में इंसान इश्क में आकर भूल जाता है किसी चीज़ को, इसलिए नसय से भी निकला है और उनस से भी निकला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम अजमईन। खुदाया पाक परवरदिगारा, या अल्लाह हमारी इस छोटी सी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, हमारी गुनाहानी कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा। या अल्लाह माह रजब आया, माह शाबान आ रहा है, माह रमज़ान आ रहा है। अल्लाह तुमने इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत से महीने दिए, और अगर हम इन महीनों से फ़ायदा हासिल ना करें तो कितनी बदबख्ती होगी हमारे लिए। ए अल्लाह, तेरी तौफीक भी होनी चाहिए, तुझे इस कुरान का वास्ता हमें ऐसी तौफीक अता फरमा कि हम तुम्हारे माह रजब, शाबान, रमज़ान से भरपूर फ़ायदा लें। और ए अल्लाह, ये जो कबूलियत के महीने हैं, इनमें हमारी दुआओं को कबूलियत का दर्जा अता फरमा, हमारे गुनाहानी कबीरा सगीरा को माफ़ फरमा। हम अपने दर्स का सवाब देते हैं 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम को, वहाँ से जो सवाब मिले वो हमें, हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को, हमारे माँ बाप को, ए अल्लाह हमारी फैमिली को अता फरमा, और तमाम मरहूमीन को अता फरमा। और ए अल्लाह, इस कुरान के सदक़े में इस कुरान की तालीमात को, इश्क को, मोहब्बत को, ए अल्लाह इसके समझने को, खुदाया और मोहम्मद और आले मोहम्मद को, इन दोनों चीज़ों को हमारे अंदर, हमारी औलादों, हमारी नस्लों के अंदर नाफिज फरमा। हमारी नस्लों को, हमारी औलादों को कुरान और अहल बैत से कभी जुदा ना फरमा, और हमको भी। और ए अल्लाह, इसके सदक़े में हमारी तमाम हाजात को पूरा फरमा, हमारी मुश्किलात को हल फरमा, हमारी जो हाजत है अपनी औलादों के बारे में वो पूरी फरमा, और हमारे इमाम मेहदी आखिर ज़मां का ज़हूर जल्द अज जल्द फरमा। हाँ, मैं भी एक मुश्किल में हूँ, मेरे लिए भी दुआ करवा दीजिए। जी, हम सब मिल के दुआ करते हैं। आज बड़ा दिन है, और इमाम का दिन है, बड़ा दिन है, रजब का आखिरी दिनों में से है। और अल्लाह से दुआ करते हैं, कुरान की क्लास के बाद हम सब अपनी प्यारी सी बहन के लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह, ए पाक परवरदिगारा, तुझे बीबी ज़ैनब की बहन बीबी उम्मे कुलसूम का वास्ता है, तुझे इमाम हुसैन की बहन बीबी ज़ैनब का वास्ता है। खुदाया, जो हमारी प्यारी सी बहन है, इसकी जो भी मुश्किल है, खुदाया बीबी ज़ैनब के सदक़े में, बीबी उम्मे कुलसूम के सदक़े में, बीबी फ़ातिमा ज़हरा के सदक़े में, या अल्लाह इनकी तमाम मुश्किलात को हल फरमा, और जो इनकी हाजत है वो पूरा फरमाए। थैंक यू। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। थैंक यू। Thank you.